جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 463 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی. اس ایپیسوڈ میں موجودہ جو کرنٹ افیئرز ہیں، پولیٹیکل افیئر ہیں، ان پہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کروں گا. وہ کچھ یوں ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے. کبھی FATF کے نام پہ، کبھی خاکوں کے نام پہ، اور کبھی دہشت گردی کے نام پہ. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ جو اسلامی دنیا کے نامور لیڈر تھے اسلامی سربراہی کانفرنس میں، جنہوں نے شرکت کی 74 میں، بھٹو صاحب اس کے ہوسٹ تھے، تو سب کو باری باری مار دیا گیا. کوئی بھی طبعی موت نہیں مرا. آج بھی اگر دیکھیں تو حالات کچھ مختلف نہیں ہیں. کہیں پہ قذافی کو گھسیٹا گیا صحراؤں میں جیپوں کے ساتھ باندھ کے، اور کہیں صدام حسین کو جیل میں ڈالا گیا، اس کو کپڑے اور جرابیں دھوتے ہوئے دکھایا گیا. یہ بھی اسلامی دنیا کے لیڈروں کی ڈسگریس اور تذلیل تھی، اور کرنے والے بھی مقامی لوگ ہی تھے، عدالتیں بھی مقامی تھیں. اسی طرح اپنے پیارے وطن پاکستان میں آ جائیں تو یہاں بھی ایک تو کوئی لیڈر پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا، اور جو لیڈر بننے کی کوشش کرتا ہے، یہاں جو عوام کے لیے تھوڑی بہت ہمدردی رکھتا ہے، اس کا حشر آپ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے. جب تک وہ ایک خاص طبقے کی خواہشوں کو پورا کرتا رہتا ہے، وہ اقتدار میں بھی رہتا ہے، لیکن جب وہ عوام کے لیے سوچنا شروع کرتا ہے تو اسے فارغ کر دیا جاتا ہے. یہ عوام میں بددلی پھیلانے کے لیے FATF جیسے ادارے اور دوسرے صرف خاص کر اسلامی ملکوں کا معیشت کا گلا گھونٹنے کے لیے کبھی شرط آ جاتی ہے 40,000 روپے شناختی کارڈ کی، کبھی ملٹی نیشنل دوائیوں کی قیمت دگنی تگنی کر دیتے ہیں، کبھی IMF والے اپنی شرائط رکھتے ہیں کہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں، گیس کے ریٹ بڑھائیں. یہ تو شکر ہے الحمدللہ کہ ہماری قوم سمجھدار ہے، ہم خواہ مخواہ روڈوں پہ نہیں آتے. پھر ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں ان کی فہم و فراست قابل قدر ہے، وہ ان چیلنجز سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے چند سیاستدان ہٹ دھرم لوگ ان کے ہاتھوں میں کھیل جاتے ہیں. آج بھی اصل مسئلہ انڈیا سے نہیں ہے، افغانستان سے نہیں ہے، اصل مسئلہ پاکستان کے اندر ہے. برسر اقتدار پارٹی اور جناب محترم وزیر اعظم صاحب اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہے. ملک میں بدامنی ہو جائے، مظاہرے ہو جائیں، روڈوں پہ لوگ آ جائیں، وہی بات جو آپ ایک کمرے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، جمع غفیر جمع کر کے کوئی دھماکہ ہو جائے. پھر لوگ کتنے پریشان ہوتے ہیں جب روڈیں بند ہوتی ہیں، مریض ہاسپٹل نہیں جا سکتے، مسافر ایئرپورٹوں کو بس سٹینڈوں پہ نہیں جا سکتے. پورا ایک ماحول ہوتا ہے جس نے اپنے سخر میں اس ایریے کو، اس علاقے کو جکڑا ہوتا ہے. پھر کروڑوں روپے جلسوں کی سیکیورٹی پہ لگتے ہیں،
करोड़ों रुपए बैनरों पे लगते हैं, कुर्सियों पे, शामियानों पे, लेकिन गरीब आदमी की मुश्किलात फिर वहीं रहती हैं। हमारे हुक्मरानों को, अपोजिशन लीडरों को कौम के लिए कुर्बानी देनी चाहिए, उन्हें टेबल पे बैठ के बात करनी चाहिए। सबसे पहले महंगाई का हल ढूंढना चाहिए। ये मसनूई है, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। ये एक ख़ास जो वो हाइब्रिड वार कहते हैं, ये भी उसका हिस्सा है कि हर आदमी के घर में बिजली के बिल की सूरत में, गैस के बिल की सूरत में एक बम भेजो फ्रस्ट्रेशन का, ताकि वो फटे। फिर मुख्तलिफ़ मसलकों के इबादत गाहों पर हमले करो ताकि लोग आपस में दस्तों गिरेबां हों। हमारी कौम में पहले कह चुका हूँ बहुत समझदार है, वो बहुत ही समझदार है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, अपोजिशन लीडरों को इतनी समझ नहीं है। हम बैरूनी ताकतों का खिलौना बन रहे हैं सिर्फ़ अपनी अजना और अपनी ज़िद के लिए। सबसे पहले पाकिस्तान होना चाहिए, कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं होना चाहिए। मिल बैठ के कमरे में दफाई अदारों, अदलिया, सबको सर जोड़ के बैठ के इस मुल्क का मुस्तकबिल और उसका बेहतर हल सोचना चाहिए। जिनके लिए नैब के केसेस और रिकवरी आज तक एक पैसा बरामद नहीं हुआ, वो पिछले 10-15 साल का किस्सा है। अभी जो 2.5 साल में हो रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये अभी रुकने में नहीं आ रहा। मैं सुन रहा था पंजाब के रेवेन्यू में खसारा हो गया है, इस तरह रिमिटेंसीज हैं, इस तरह एक्सपोर्ट है, रुपए की कीमत है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक मुल्क में अमन व अमान नहीं होगा, और उसके ऊपर सबसे बड़ी वबा कोरोना है, वो तो हमारे लोगों की इम्यूनिटी पावर, विल पावर माशाल्लाह बहुत तेज़ है, हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मैं अक्सर देखता हूँ मुख्तलिफ़ फंक्शंस में, जब हमारे रिलेटिव्स बैरून मुल्क से आते हैं, वही खाना हम खाते हैं, हमें कुछ नहीं होता, वही खाना वो खाते हैं, उनका स्टमक ख़राब हो जाता है। इससे पता चलता है कि हम में इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग और बैरून मुल्क के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं भी बैरून मुल्क तकरीबन 20 साल गुजारे हैं मिडल ईस्ट, यूरोप में। वहाँ आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं, गाड़ी जहाँ चाहें रोक सकते हैं, जितनी स्पीड में चाहें चला सकते हैं। फिर आप जब ड्राइव कर रहे होते हैं तो आपको अपनी जान भी अजीज़ होती है, आपके अहल आपके साथ होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूँ फील होता है कि मैं उस गाड़ी का मुसाफिर हूँ जिसने मुझे टिकट तो रावलपिंडी की दी है, लेकिन पता चला उसने मुझे जेल में उतार दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि उसके ड्राइवर ने नशा किया या नहीं किया। मुझे ये भी नहीं पता कि पता नहीं उसका टाई रॉड कब खुल जाएगा, कब पुलिस की वर्दी में डाकू उसको लूट लेंगे, क्या ये मंजिल मकसूद पे पहुंचेगी। अनसर्टेनिटी है। बैरून मुल्क ख्वाहिशें हमारी ग़ुलाम थी, राडो, रोलेक्स, गोल्ड चैन, गोल्ड ब्रेसलेट, ये ऐसे ही है जब हम किसी वेजिटेबल या ग्रोसरी स्टोर में जाके चीज़ें ख़रीदते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान में ये चीज़ें ख़रीदने के लिए आपको मेरा ख्याल है कमेटी डालनी पड़ेगी, या अगर आप खुशकिस्मत हैं तो शायद आपका कोई बांड निकल आए, वगरना ये चीज़ें आपकी पहुंच से बहुत दूर है। हाँ, एक ख़ास तबका है जिसके लिए ये तमाम आसाइशें मौजूद हैं, वो इनको मैनेज भी कर लेते हैं, अरेंज भी कर लेते हैं, और उनको पूछता भी कोई नहीं। जूँ जूँ महंगाई बढ़ेगी, करप्शन का ग्राफ बढ़ेगा। सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह साल के साल बढ़नी है, और अगर 20% महंगाई बढ़ जाती है तो ये गैप उसने कहाँ पूरा करना है। लाजमी बात है, अगर वो गैस महकमे में है, इलेक्ट्रिसिटी में है, या और किसी डिपार्टमेंट में है, हाईवे में है, इंजीनियरिंग में है, वो कहाँ से ये 20% पूरा करेगा। हम खुद उसको तरगीब देते हैं कि वो 2 नंबरी करे और गुजारा करे।
बाकी रह गई वो पब्लिक जो जॉब प्राइवेट करते हैं, तो वो भी अपने फैक्ट्री ओनर से ज़्यादा तनख्वाह का मुतालबा करते हैं। इस तरह उसकी प्रोडक्ट पे कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर गवर्नमेंट बिजली की कीमत बढ़ाती है, गैस की, उससे भी प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। बाकी रह गए आम जो दिहाड़ीदार मज़दूर हैं, वो अपनी मज़दूरी में ख़ुद ब खुद इजाफ़ा कर लेते हैं। सब्ज़ी वाला अगर हजाम के पास जाता है तो वो कहता है जी मैं तो दाल लेने गया था, 110 थी 140 हो गई है, अब शेव के पैसे 50 नहीं 70 रुपये होंगे। सब्ज़ी वाला वापस आके ये ज़हन में माइंड बना के आता है कि उसने 20 रुपये बढ़ा दिए हैं जो मेरी जेब से फालतू गए हैं। वो क्या करता है, वो हर किलो पे 5-10 रुपये बढ़ा देता है। इसी तरह अगर मोची के पास कोई जाता है, वो सब्ज़ी लेके आता है, तो वो जूते की मरम्मत के 20 की बजाय 30 कर देता है। हम आवाम एक दूसरे की जेब में हाथ डाल लेते हैं, क्योंकि जो 20-30% का फ़र्क है हमने किसी न किसी तरह वो पूरा करना है। क्योंकि मैंने बैरून मुल्क ख़ासकर मिडिल ईस्ट में देखा है, वहाँ हर एक की तनख्वाहें इतनी मकबूल हैं कि कोई इस बारे में सोचता भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक तो रुपये की कदर कम हो गई, गैस के बिल बढ़ गए। अभी गैस पे इन्होंने टीवी पे ऐड में दिखाते हैं इतने मकाब फूड यूज़ करेंगे, तो ये सीधा कंज्यूमर को बताएं कि अगर आपकी 100 यूनिट है तो बिल इतना आएगा, 150 यूनिट है तो इतना आएगा, 200 यूनिट है तो इतना बिल आएगा। उसकी ये स्लैब है। ये मकाब फूड कौन आम शहरी कैसे निकालेगा? मेरी समझ से बालातर है। ये बड़ा कोई टेक्निकल माइंड होगा जो स्टडी करेगा, वगरना हमारे 95% लोगों को इसका नहीं पता। इसलिए टीवी पे जब ये गैस डिपार्टमेंट वाले इंफॉर्मेशन के लिए ऐड चलाते हैं शहरियों के लिए, गाइडेंस के लिए, तो प्लीज़ मकाब फूड की बात ना करें, मीटर की रीडिंग की बात करें कि अगर 50 यूनिट हुए तो कितना बिल है, 100 हुए तो कौन सा स्लैब है, 150 तो कौन सा स्लैब है, और 200 है तो कौन सा स्लैब है। शहरियों के लिए आसानी पैदा करें। यूँ महसूस होता है कि जैसे मौजूदा गवर्नमेंट को या तो नाकाम करने के लिए ऐसा किया जाता है, या इसको भेजा ही इसलिए गया है इस गवर्नमेंट को कि जाओ हर घर में अफरा तफरी मचे, ऐसे काम करो। कभी 40,000 शनाती कार्ड, कभी सेविंग अकाउंट्स पे इंक्वायरी, कभी गैस के बिल, कभी बिजली के बिल, कभी समुद्र में जजीरों की बातें जो 70 साल में नहीं सुनी थी। इस नाजुक मौके पे इन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। वतन अज़ीज़ को और हमारे मुअज़्ज़ज़ फ़ौज के अदारे को आवाम के तावन और सियासतदानों की बसीरत की ज़रूरत है। हम सब को फ़ौज के शाना बशाना खड़े होना चाहिए। हमारे पिछले दिनों में कितने जवान शहीद हो गए हैं। हमारे सियासतदानों के बेटे तो सबके बैरून मुल्क हैं, हाँ वो अपोजिशन में है, हाँ इक़्तिदार में है। ये 200-200, 250-250, 300-300 कनाल के घरों में रहते हैं और बातें गरीबों की करते हैं, इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। इसलिए इन सब से इल्तमास है कि पाक फ़ौज के साथ कंधे से कंधा मिलाएं ताकि मुल्क का दफा मजबूत हो। मादरत के साथ हमारी अदलिया से जो तवक्कुआत होती हैं वो कभी आज तक पूरी नहीं हुई। लगता है कि फ़ैसले वक्ती या पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मादरत के साथ जज्बाती होते हैं या पर्सनल होते हैं, उनके दूरअस नताइज आज तक अच्छे नहीं निकले। मुझे नहीं याद कि अगर किसी एक वज़ीर आज़म को हटाया गया तो उसके बाद हालात बेहतर हो गए। जब भी किसी को हटाया गया तो हालात बदतर से बदतर हुए। ये लम्हा फ़िक्रिया है, मैंने अपनी बसीरत के मुताबिक बात की है। शायद आपके पास इससे बेहतर दलाइल हों, आप बेहतर कौम का दर्द रखते हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें
دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔